أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، کل میں نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور عید میلاد کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج میں پھر آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، آپ کی ذات کو، آپ کے طریقہ حیات کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اب ہمیں جو کرنا ہے وہ بھی حضور کی سیرت کی روشنی میں، اور جو نہیں کرنا ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کو ہمیں پڑھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، تب جا کے پھر ہم حضور کی عادتوں کو، حضور کی باتوں کو، حضور کی سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف شعبے ہیں اور مختلف پہلو ہیں۔ اس میں سے ایک پہلو کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ حضور کا تعلق عوام سے کس طرح کا تھا، یا حضور ایک معاشرتی زندگی کیسے گزار رہے تھے، ایک سوسائٹی میں کس طرح رہنا ہے، سماج معاشرے میں، گلی محلے میں ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، اس کا طریقہ بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لینا ہے، اور اس کی بھی تعلیم حضور کی سیرت اور زندگی میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک آپ ایک نارمل انسان کی طرح مکے کی سرزمین میں رہے، اور جس طرح اور لوگ تھے اس طرح سے حضور بھی رہتے تھے، لیکن حضور کا طرز زندگی کچھ الگ تھا اور حیات ظاہری گزارنے کا انداز کچھ الگ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تب جا کے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، جبکہ اس سے پہلے بھی آپ نبی تھے، اور جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی آپ نبی تھے، اور جب کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق اور پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی آپ نبی تھے۔ لیکن دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد جب 40 سال کا ایک کثیر عرصہ گزر گیا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجئے، اپنی رسالت کا پرچار و پرسار کیجئے، میری وحدانیت و ایکتائی کی دعوت لوگوں کو دیجئے۔ 40 سال تک آپ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ اب 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیوں کیا، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا، وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ بحث ہے، انشاءاللہ میں کبھی بتاؤں گا۔ 40 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں رہے تو کیا اپنے، کیا بیگانے، کیا رشتہ دار، کیا پڑوسی، کیا اہل مکہ، کیا غیر اہل مکہ، اور کیا اہل ایمان یا جو دین حنیف کو مانتے تھے یا جو بت پرستی کے شکار تھے، سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امین کہا، یعنی امانت دار کہا، سبھی نے حضور کو صادق یعنی سچے کہا، سب نے حضور کی تعریف کی، اور سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھا انسان جانتے تھے، مانتے تھے، تصور کرتے تھے، اور آپ کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور ایک سماج میں کس طرح سے رہتے تھے، اتنے سچے تھے، اور باتوں میں اتنی سچائی تھی، اور زندگی گزارنے کا انداز اتنا انوکھا اور نرالا تھا کہ ہر کوئی آپ کو امانت دار کہتے تھے، ہر کوئی آپ کو سچا کہتے تھے۔ کیوں؟ اس کا مطلب 40 سال آپ نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ ہر کوئی آپ کو امین اور صادق کہنے پر مجبور ہوئے۔ تو آپ معاشرتی زندگی آپ کی کیسی تھی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حق گوئی، بے باکی، اور پڑوسیوں کا خیال، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار، نرم گفتگو، بری باتوں سے بچانا، ہر وہ چیز، ہر وہ عادت جو سماج انسانیت کے خلاف ہے، اس سے بچانا، اچھے سے باتیں کرنا،
जो जिस कैटेगरी का है उसको उस हिसाब से इज्जत देना, बड़ों का मान सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, अपनों के साथ किस तरह ताल्लुक होनी चाहिए, पड़ोसियों के साथ किस तरह ताल्लुक होनी चाहिए, किसके क्या हुकूक है, उस तरह से आप जिंदगी गुजारते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हुस्न अखलाक अपनाना चाहिए, हमें पड़ोसियों का ख्याल करना चाहिए, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, छोटों से प्यार करनी चाहिए, जो बेवा लाचार मजबूर है उन्हें बंद मुट्ठी में जो है मदद करनी चाहिए, लोगों की पर्दापोशी करनी चाहिए, भटके हुए को सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। ये नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें सबक मिलता है। आज 1400 साल का अरसा गुजर गया, आज भी हुजूर की सीरत से हमें यह पैगाम मिलता है कि अगर वाकई कलमा पढ़ते हो और कलमा जानते हो और कुरान की तिलावत करते हो और कुरान सुनते हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मुआशरती जिंदगी को अपनाओ। आज हमारा ये हाल है कि हम अपनों से लड़ रहे हैं, हम पड़ोसी से लड़ रहे हैं, हम रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में गाली का कोई लफ्ज ही नहीं है, किसी को ऊंच नीच कही हो या बोले हो ऐसा कोई तस्करा नहीं है। हुजूर इतने नरम अंदाज से बात करते थे, हर कोई हुजूर की तरफ खींचा खींचा चला आता था, इतना प्यारा अंदाज था, इस तरह से शफकत मोहब्बत से बात करते थे, खुद तकलीफ सह लेते थे, खुद नहीं खाते थे, खुद परेशानियां जो है अपने ऊपर ले लेते थे, लेकिन सामने वाले को परेशानी में डालना गवारा नहीं था, दूसरे को भूखा देखना पसंद नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम जब तिजारत करते थे, कारोबार की दुनिया में आपने कदम रखा तो इतने सच्चे थे, इतने सच्चे थे, इतने सच्चे थे कि हर कोई आपके ऊपर यकीन और भरोसा करता था। और वो इस काबिल थे भी कि अल्लाह के बाद अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा यकीन और भरोसा करना चाहिए तो वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा आज अगर हम रबीउल अव्वल शरीफ में ईद मिलाद की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को सुन्नी मुसलमान कह रहे हैं, हम अपने आप को कलमागो मुसलमान कह रहे हैं, तो हमें अपने माशरती जिंदगी, सोसाइटी की जिंदगी और गली मोहल्ले की जिंदगी, इस दुनिया की जिंदगी को सुधारना होगा। कैसे? सच्चाई पे चलना है, सच बात कहना है, बुराई की जो है मुखालिफत करनी है, उसकी बुराई की तरदीद करनी है और जबान नरम होना चाहिए, गुफ्तार का अंदाज प्यारा होना चाहिए, समझने समझाने का भी तरीका बिल्कुल खूबसूरत होनी चाहिए। अपने अड़ोस पड़ोस गली मोहल्ले में जो हाजतमंद है, जरूरतमंद है, उसकी मदद करनी चाहिए, बड़ों से प्यार से बात करनी चाहिए, छोटों से शफकत से बात करनी चाहिए, और जो है कोई परेशान हाल हो तो उसके खबरगिरी लेनी चाहिए, बंद मुट्ठी दूसरे की मदद करनी चाहिए, लोगों के ऐबों पर पर्दापोशी करनी चाहिए। नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की ये तालीमात है। लिहाजा आज के सबक में अज़्म करें, इरादा करें कि हम अपने मुआशरती जिंदगी खूबसूरत बनाएंगे। आज बाप बेटे से दूर, औलाद माँ बाप से दूर, माँ बाप औलाद से दूर, भाई भाई से दूर, बहना बहना से दूर, अपने अपनों से दूर, जो है एक दूसरे से नफरत की हुई, एक दूसरे पर यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, किसी से जान का खतरा, किसी से ईमान का खतरा, किसी से घर का खतरा, किसी से रिश्ते का खतरा, तरह तरह के खतरे हमारे समाज और मुआशरे में है। उसकी वजह यह है कि हम एक तरफ कलमा पढ़ते हैं, दूसरी तरफ उसी नबी की तालीम हमारी जिंदगी में नहीं है। हमारे बारे में कोई क्या सोचता है, हमारे बारे में कोई क्या बोलता है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हमें मतलब है तो हुजूर की सीरत से मतलब है कि हुजूर एक समाज और मुआशरे में कैसे रहते थे, हुजूर एक सोसाइटी में किस तरह जिंदगी गुजारते थे, हुजूर अड़ोस पड़ोस गली मोहल्ले और इलाके वालों की किस तरह ख्याल करते थे, किस तरह से शफकत और मोहब्बत से पेश आते थे, किस तरह से नर्म से गुफ्तगू किया करते थे। हमें इन तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। लेकिन आज हमारी जबान पे देखिए, बात बात पे गाली, छोटी बड़ी बात पे गाली, अपनों को गाली, पराए को गाली, पड़ोसी को गाली। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें ये भी तालीम मिलता है, ये भी सबक मिलता है कि घर में कुछ इस तरह से शोर शराबा मत करो कि पड़ोसी को तकलीफ हो, घर में कुछ इस तरह से मत पकाओ कि पड़ोसी का दिल दुखे,
कि इनके घर में अच्छा पकड़ा और हमारे घर में नहीं है, खुशबू तक जाने मत दो ताकि किसी का दिल ना दुखे। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो अर्श इलाही हिल जाता है। लेकिन आज हमारा ये हाल है, दिल तो क्या पूरे शरीर को हम हिला डालते हैं, पूरे शरीर को चिकनाचूर कर डालते हैं, लेकिन हमें इस बात का कोई एहसास नहीं कि हम उस नबी रहमत के जानने और मानने वाले हैं जिनकी तालीम ये है कि किसी का दिल ना दुखाओ। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अगर आज रबीउल अव्वल शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तैयारी हम कर रहे हैं तो इन तालीमात को मद्देनजर रखना चाहिए। अगर हम हुजूर की तालीमात को अपनी जिंदगी में शामिल किए हुए हैं या कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं या नियत किए हैं, तो फिर आप 12 रबीउल शरीफ में जब जुलूस मनाएंगे, मिलाद शरीफ की महफिल मुनक़िद करेंगे, अपने घरों को सजाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हमारे अंदर ये तालीमात समाने की और अपनाने की चाहत नहीं है और कोशिश नहीं है तो आप कुछ भी कर गुजरिए, हुजूर अलैहिस्सलाम खुश नहीं होंगे। और जब हुजूर खुश नहीं होंगे तो फिर याद रखिए अल्लाह खुश नहीं होगा, और जब अल्लाह खुश नहीं होगा तो फिर हमारा क्या ईमान और हमारे लिए क्या जन्नत, कुछ भी नहीं है। हुजूर की सीरत को अपनाइए, अपना अंदाज बदलिए, नरमी पैदा कीजिए, खुश गुफ्तार बनिए, हुस्न अखलाक से पेश आइए, दुश्मन के लिए भी दुआ कीजिए। अहले दिल वो होते हैं और सबसे बड़ा दिल उसका होता है जो अपनी दुआओं में दुश्मन के हक में भी दुआ करते हैं कि मौला मेरे दुश्मन के जो फला शख्स मुझसे दुश्मनी रखता है या उसके लिए मेरे दिल में नफरत है, मौला इस नफरत को मोहब्बत में तब्दील फरमा, मेरे हक में भी खैर फरमा, मेरे दुश्मन के हक में भी खैर फरमा। या अल्लाह मुझे भी ईमान इस्लाम पर इस्तेकामत अता फरमा, मेरे दुश्मन को भी ईमान इस्लाम पर इस्तेकामत अता फरमा, दीन दुनिया की भलाइयां नसीब फरमा। जिस तरह जब बंदा इस तरह से दुआ करता है तो समझ लीजिए वही इंसान दिल वाला होता है, वही इंसान का दिल सबसे बड़ा होता है और वो कामिल मोमिन होता है, और ऐसे बंदे की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। और हमारा हाल तो ये है कि ना मोमिन के लिए जल्दी से हम दुआ करते हैं और ना मोमिन के लिए अपना दिल बड़ा करते हैं, ना अपनी दावत बड़ी करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मोमिन भाई के लिए भी दुआ करें और जो ईमान का रिश्ता है उसको मजबूत करें, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने आखिरत को संवारें, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें। और हुजूर से सच्ची मोहब्बत का यही मतलब है कि हुजूर की अदाओं को, हुजूर की तालीमात को, हुजूर के इरशादात को अपनी जिंदगी में नाफिज करें, दाखिल करें, शामिल करें। अल्लाह पाक हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए।